programming or in on big data is based on chapter number 4. Okay, so chapter number 4 is totally practical based. All practical related concepts you are supposed to learn in chapter number 4. Okay, so we'll keep this chapter number 2 and 3 theory chapters on hold, as we are supposed to start with the practical soon. We'll start with this chapter number 4, so that at least you can do the practice of practical assignments. ठीक है, so if you go to the syllabus, I already explained you the syllabus. ठीक है, 4 ही चैप्टर्स है. ठीक है, उसमें से पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा, वेयर यू लर्न व्हाट एक्चुअली बिग डेटा इज, टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा. ठीक है, today I will post the soft copy notes of chapter number 1 on the student group. ठीक है, so chapter number 2 और 3 हम अभी होल्ड पे रख रहे हैं, बाद में हम उसको कवर करेंगे. थ्योरी चैप्टर से यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स इस चैप्टर पे ऊपर बेस्ड नहीं है, थ्योरी कांसेप्ट्स है. हाँ, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, बट नो प्रैक्टिकल्स आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर नंबर 2 एंड 3. सो व्हाटएवर द 30 स्लिप्स आर देयर. ठीक है, see here your 100 marks practical is based on now 3 subjects: data structure, PHP and R programming. तो एक स्लिप में 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं. एक डीएस का क्वेश्चन होगा, एक ईएसपी का क्वेश्चन होगा और एक आर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होगा. ठीक है, ऐसे 30 स्लिप्स है टोटल. सो 30 स्लिप्स, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आर देयर, टोटली बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 4. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स विद आर और व्हीकल लर्निंग मशीन. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 4, डेटा एनालिटिक्स विद आर. Okay, whether the presentation is visible to you, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So chapter number 4, data analytics with R. So here actually through this chapter you are supposed to learn R programming. ठीक है, जैसे C प्रोग्रामिंग है उसी तरह से आपको एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी सीखना है. कौन सा लैंग्वेज सीखना है आपको अभी? R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, so what is R programming language? So R is an interpreted computer programming language which is used to analyze statistical information and graphical representation. ठीक है, तो R ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, so here some high level languages are interpreted language, some higher level languages are compiled. जैसे C language जो है, C language use compiler to convert C program into equivalent machine program. है ना, आपको अभी पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम which is in the form of 0 and 1. ठीक है, what is the program you write in last year through C programming language which is in our understandable format. ठीक है, English like words, English like sentences directly you can use while writing C program, but computer does not understand those English like words and sentences. So for that you must convert your C program into equivalent machine program in the form of 0 and 1, and for that you need compiler. C programming का compiler, turbo C compiler आपने use किया है. So compiler का task क्या होता है? Compiler just convert your C program into equivalent machine program which is in the form of 0 and 1, and the machine can execute that program properly, can understand that program, and then tasks will get performed. ठीक है, तो कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो कंपाइलर को सबमिट कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस है, और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इंटरप्रेटर और कंपाइलर एक ही टाइप का सॉफ्टवेयर, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है. ठीक है, जैसे कि अभी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर यूज नहीं करता है, इंटरप्रेटर यूज करता है टू कन्वर्ट द आर प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन प्रोग्राम. ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कंपाइलर, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर. ठीक है, बोथ आर द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? बोथ आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर used to convert higher level program into machine program. Both the system software, कंपाइलर है या तो फिर इंटरप्रेटर है, उनका एक ही टास्क है, वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन प्रोग्राम में.
तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर प्रोग्रामिंग, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो सी प्रोग्राम को अगर आपको कन्वर्ट करना है मशीन प्रोग्राम में तो कंपाइलर की जरूरत है। आर प्रोग्राम को अगर आपको कन्वर्ट करना है मशीन प्रोग्राम में तो आपको इंटरप्रेटर चाहिए। सो दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना। पहला सेंटेंस क्या है, आर इज एन इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इफ यू आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, एक्चुअली सेम टास्क इज परफॉर्म बाय बोथ द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। Same task is performed, but there is a difference between in compiler and interpreter. So if anybody asks you the difference between compiler and interpreter, so you must know the difference. तो पहला डिफरेंस है कि कंपाइलर compile whole program at a time. Whole program will be converted into machine language. एज्यूम करो कि अगर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में अगर सपोज 100 इंस्ट्रक्शंस है, 100 लाइन का अगर प्रोग्राम है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले पूरे 100 लाइन चेक करेगा कि इज देयर एनी एरर इन एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट सी प्रोग्राम, ठीक है। अगर एरर है तो कंपाइलर विल नोटिफाई दोस एरर कि यस इन लाइन नंबर 50 देयर इज अ एरर, इन लाइन नंबर 60 देयर इज अ एरर और समथिंग लाइक दैट। एग्जीक्यूट कंपाइल मींस कन्वर्ट करने से पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम चेक होगा पहले कि वेदर होल प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट, सिंटैक्चुअली करेक्ट और नॉट। If all 100 instructions are syntactically correct, no error, then whole program, whole program of 100 instructions, or whole program will be then converted into equivalent machine program. पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोग्राम को बाद में एग्जीक्यूशन होता है उस प्रोग्राम का, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जब आपने प्रोग्राम रन किया, सी प्रोग्राम की बात करें, if you give command to the computer that run this program or execute this command program, पहले कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर प्रोग्राम को चेक करेगा कि सारे इंस्ट्रक्शन करेक्ट है या नहीं है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन अगर करेक्ट है तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मींस पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर के लिए ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है प्रोग्राम और लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है मशीन प्रोग्राम में, और साइमल्टेनियसली उसका एग्जीक्यूशन भी होता है, ठीक है। लाइक सपोज एज्यूम करो कि ये एक एक आर प्रोग्राम है, आर प्रोग्रामिंग का पहला इंस्ट्रक्शन है, आर प्रोग्रामिंग का दूसरा इंस्ट्रक्शन है, आर प्रोग्रामिंग का तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्ट्रक्शन। लेट्स जस्ट एज्यूम एट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस स्लाइड इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन ऑफ आर प्रोग्राम। तो कंपाइलर कैसे काम करेगा, कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम चेक नहीं करेगा कि वेदर होल प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट, सिंटैक्चुअली करेक्ट और नॉट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, सिर्फ पहला इंस्ट्रक्शन चेक करेगा वेदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन is syntactically correct. If it is, if first instruction is correct, only first instruction will be converted into 0 and 1. Means only first instruction will be converted into machine program, equivalent machine program, and that line that instruction get executed. एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, जब मैंने प्रोग्राम रन करने का कमांड दिया है, आर प्रोग्राम सपोज आर प्रोग्राम रन करने का कमांड दिया है सपोज कंप्यूटर को, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले पहला इंस्ट्रक्शन चेक करेगा whether it is correct or not. If it is correct, it is converted. That single instruction will be converted into machine program. Simultaneously it get executed. After execution, then interpreter take the second instruction of the program and will check whether second instruction is syntactically correct or not. If it is syntactically correct, again it will be converted. That single second instruction only will be converted into machine program. That will be simultaneously then executed by the processor. Then interpreter will take the third instruction of the program. We'll check whether the third instruction is syntactically correct or not. If it is, then it will be converted into machine program. Then it will be executed by the processor. And this will continue till last line. Okay. Then interpreter will take the fourth instruction. Fourth instruction, if it is syntactically correct, it will be converted into machine program. Then it will be executed by the processor. Then interpreter will take the next instruction. And now I assume that in next instruction there is a error. अभी ऐसे करो कि इतना पार्ट तो एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम का, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ भी एरर नहीं था इंटरप्रेटर के लिए। लेकिन इंटरप्रेटर ने जब फोर्थ इंस्ट्रक्शन लिया प्रोग्राम का, और एज्यूम करो कि उस इंस्ट्रक्शन में अगर एरर है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा,
interpreter will report that error to the user that there is an error in this line number 4. Whole program is then stopped. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, stop हुआ in between due to some error. So after that you are supposed to resolve that error from this line number 4. Once you resolve that error, again you are supposed to give the command to the interpreter that execute the R program. Again execution will start from the first line. First line सिंटेक्चुअली चेक होगा करेक्ट है या नहीं है, कन्वर्ट होगा मशीन प्रोग्राम में, एग्जीक्यूशन होगा बाय द प्रोसेसर. then second instruction, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine सारे सिंटेक्चुअली करेक्ट है, एग्जीक्यूट होते जाते हैं. ठीक है, कन्वर्ट होते जा रहे, एग्जीक्यूट होते जा रहे. वापस अगर सपोज लाइन नंबर 11 में एरर इनकाउंटर हुआ सपोज, है ना, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, होल प्रोग्राम चेक नहीं करता सिंटेक्चुअली करेक्ट या नहीं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है. फॉर इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. बस इतना ही डिफरेंस आपको समझ में आया तो बहुत है. जैसे कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है. इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. ठीक है, यही अगर सी प्रोग्राम होता सपोज, सी प्रोग्राम सपोज ऐसे पूरा कि ये सारे इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन है, तो आपने अगर सी प्रोग्राम को अगर रन किया तो क्या करता है कंपाइलर सारे इंस्ट्रक्शन को पहले चेक करेगा कि सारे इंस्ट्रक्शन सिंटैक्चुअली करेक्ट या नहीं है. अगर कौन सी भी एक इंस्ट्रक्शन में अगर एरर है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा कि देयर इज एरर ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, यू आर सपोज्ड टू रिजॉल्व दैट एरर. ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले चेक होगा सिंटैक्चुअली करेक्ट है या नहीं. अगर जीरो एरर है तो ही पूरा का पूरा प्रोग्राम बाद में कन्वर्ट होगा मशीन प्रोग्राम में. और एक बार पूरा प्रोग्राम मशीन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर प्रोसेसर क्या करता है, सारे वो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर, और उसके बाद टास्क परफॉर्म होता है. ठीक है, any doubt in the first difference between compiler and interpreter? कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट होता है एट अ टाइम. होल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड एंड एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, एंड फॉर इंटरप्रेटर इट इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन. Just a minute, students. Second difference है, your compiler is much faster than the interpreter. ठीक है, कंपाइलर क्या होते हैं, कंपाइलर फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर. एक्चुअली तो वो डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल है कि वी कैन नॉट एनालाइज कि किसको ज्यादा टाइम लग रहा है. बट वैसे देखा जाए तो क्योंकि देखो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. एक सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है प्रोसेसर. ठीक है, बट and that time is in nanosecond and picosecond. We could not analyze that कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है. बट वैसे देखा जाए स्पीड देखा जाए तो कंपाइलर का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि कंपाइलर पूरा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है एट अ टाइम. इंटरप्रेटर का वैसे नहीं, इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है ना. इंटरप्रेटर ऐसे प्रोग्राम को लाइन एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन. ठीक है, दैट्स व्हाई इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन द कंपाइलर. And third difference is for compiler, separate bytecode file is created. No such bytecode file is created for interpreter. क्योंकि जब मींस जब सी प्रोग्राम अगर आपने एग्जीक्यूट किया, सो सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जब कंपाइल किया सी प्रोग्राम को, तो एक सेपरेट बाइटकोड फाइल क्रिएट होता है आपके हार्ड डिस्क के ऊपर से होता है. वो एक्चुअली एक मशीन प्रोग्राम होता है सेपरेट आपके प्रोग्राम का. ठीक है, व्हेन यू कंपाइल द सी प्रोग्राम, सेपरेट बाइटकोड फाइल उसको बोलते हैं, बाइटकोड फाइल क्रिएट होता है व्हिच इज we can say the machine program of your C program. प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद सेपरेट बाइट कोड फाइल क्रिएट होता है. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ सेपरेट फाइल क्रिएट होता है इंटरप्रेटर के लिए, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन हर एक इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन चेक करता है करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है मशीन प्रोग्राम में, जो कि सेव नहीं होता कंप्यूटर के ऊपर सेपरेटली. वो डायरेक्टली प्रोसेसर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली. Once the instruction is converted into machine program, that instruction is immediately executed by the processor. Means bytecode file means machine program उसका जो है वो सेव नहीं होता है हार्ड डिस्क के ऊपर सेपरेटली फॉर इंटरप्रेटर, बट कंपाइलर सेव द bytecode file.
सो ऐसे बहुत सारे मीन्स ये तो मैंने इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के. You can search more difference on the internet. What are the differences between compiler and interpreter? ठीक है. तो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो है कंपाइलर का यूज करता है और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज करता है. जैसे सी प्रोग्रामिंग कंपाइलर यूज होता है, आर प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर. जावा जो आपको बाद में पढ़ना है सेकंड सॉरी थर्ड ईयर में, तो वो भी इंटरप्रेटर का यूज करता है. जावा लैंग्वेज, जावा का प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है, इंटरप्रेटर का यूज होता है. ठीक है. So R, जो programming language, R is an interpreted computer programming language which is used to analyze statistical information. So what is the use of this R programming? R programming language is used to analyze statistical information. What are the information available with you? Statistical information. You can analyze that information mainly for data analysis purpose. This R programming language is used. We cannot develop any applications through R programming language. आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आपको एप्लीकेशन नहीं डेवलप करना है. जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. यू कैन डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन डेवलप गेम्स बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. है ना. जो आप स्मार्टफोन पे आप गेम खेल रहे हो, अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं, एक्शन गेम होते हैं, आर्केड गेम्स होते हैं, बोर्ड गेम होते हैं. ठीक है. वो क्या है, सारे एप्लीकेशन है. ठीक है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सपोज वो भी एक एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सारी एप्लीकेशन. सो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सी लैंग्वेज का यूज करके डेवलप कर सकते हो. लेकिन ऐसे एप्लीकेशन आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज ओनली डिजाइन फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस. ठीक है. बाय राइटिंग प्रोग्राम थ्रू आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन परफॉर्म डेटा एनालिसिस. नो प्रॉब्लम कि आप कुछ एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते, आप गेम्स नहीं डेवलप कर सकते, आप एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते आर प्रोग्रामिंग थ्रू. तो इस आर प्रोग्रामिंग थ्रू आपको प्रोग्राम क्यों लिखना है? यू आर सपोज टू परफॉर्म सम स्टैटिस्टिकल you are you are supposed to perform some operation on statistical information so that you can analyze that statistical information. Data को analyze कर सकते हैं आप easily by writing program through R script. है ना. अभी डेटा एनालिसिस मींस व्हाट, एज्यूम करो कि आपका खुद का एक बिजनेस है, तो आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप सपोज डेली बेसिस पे परफॉर्म हो रहे हैं. यू आर गोइंग टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन समवेयर. है ना. जैसे सपोज एक पर्टिकुलर सपोज ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस थ्रू परफॉर्म हुआ, तो आप क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो कि कौन कस्टमर आईडी क्या है, कौन से कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट परचेस किया है, उसका अमाउंट क्या था, कितने अमाउंट में कितने यूनिट में परचेस किया है, उसका अगर वारंटी है तो कितने दिन का उसका वारंटी है. ठीक है. कस्टमर का एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है एक ट्रांजेक्शन थ्रू, और वो आपके डेटाबेस में या कहीं ना कहीं स्टोर होगा. ठीक है. लाइक व्हाट आर द डेली ट्रांजेक्शंस आर परफॉर्म, सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विल गेट स्टोर्ड. ठीक है. तो उस डेटा को बाद में अगर आपको एनालाइज करना है, आप डेटा तो स्टोर हो गया है आपके डेटाबेस में, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुए हैं, डेटा स्टोर हुआ है. बाद में आपको अगर वो डेटा को अगर एनालाइज करना है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट. Okay. Am I audible, friends? Yes, sir. Okay. So this R programming language is used for data analysis purpose. So आपको डेटा को एनालाइज करना मींस क्या करना है, जैसे कि सपोज आपका एक बिजनेस है और आपके बिजनेस थ्रू बहुत सारे ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुए, उसका डेटा आपके पास अवेलेबल है. सो एटलीस्ट यू कैन एनालाइज कि इस मंथ में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना अमाउंट में सेल हुआ है. ठीक है. एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिख के आप उसको एनालाइज कर सकते हो, आप इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हो. आपको पूरा ट्रांजेक्शन स्टडी करने की जरूरत नहीं है.
है ना, क्योंकि आपके पास आपके डेटाबेस में एक या दो ट्रांजेक्शन नहीं होने वाले, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन में बी परफॉर्म ऑन डेली बेसिस। तो मंथ में कितने हो सकते हैं, 6 मंथ में कितना ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो लास्ट 3 मंथ में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सपोज है, तो वो कितने यूनिट में बेचा गया, उस प्रोडक्ट को कितना बेनिफिट हुआ है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय राइटिंग सिंपल स्क्रिप्ट थ्रू आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लाइक दिस इज स्मॉल एग्जांपल कि डेटा को एनालाइज करना मींस क्या करना है। ठीक है, लाइक समरी, सम सॉर्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट समरी यू कैन व्यू। ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, 6 महीने का डेटा, 1 साल का डेटा है, लेकिन उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप सिंपली डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो डेटा एनालाइज कैसे करना है आपको, बाय राइटिंग अ सिंपल स्क्रिप्ट थ्रू आर प्रोग्रामिंग। देयर आर more functional features are available through our programming that through 3 to 4 lines of instruction और छोटा छोटे प्रोग्राम लिख के आप बड़ा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, रेडीमेड फंक्शनलिटी बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत ह्यूज लाइब्रेरी है आर प्रोग्रामिंग का। दो वो लाइब्रेरी का यूज करके आप डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, सो होप यू कैन अंडरस्टूड कि डेटा को एनालाइज करना मींस क्या करना है एक्चुअली। व्हाट एवर द डेटा इज अवेलेबल विथ यू, ठीक है, इन say large amount, analyzing the data manually is somewhat difficult task, it will be difficult for you, but same task, same data you can analyze easily by writing script through R programming. ठीक है, not only analyze, you can also view that what is the information available with you in graphical representation. ठीक है, you can also view the data in graphical format, चार्ट्स के फॉर्म में आप उसको व्यू कर सकते हो। लेकिन चार्ट्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है। ठीक है, बहुत सारे चार्ट के टाइप से, अलग अलग चार्ट के टाइप में आप वो डेटा को व्यू कर सकते हैं, सो दैट यू कुड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एट राइट टाइम। है ना, अभी डेटा, बहुत सारा डेटा है, तो उसको अगर आपको एनालाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, तो आप चार्ट प्लॉट कर सकते हो, चार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स मींस वो डेटा जो भी आपके पास स्टोर है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकली, ग्राफिकल फॉर्मेट में, एंड ऑलवेज ग्राफिकल रिप्रेजेंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टूड। है ना, अगर मेरे पास बहुत सारा 5 साल का डेटा अगर स्टोर है सपोज, और मुझे एनालाइज करना है कि 2000 में कितना सेल हुआ था, 2001 में कितना सेल हुआ था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, 2002 में कितना सेल हुआ था, 2003 में कितना सेल हुआ था, तो ये मैं ग्राफिकल फॉर्मेट में व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, अगर 2000 का जो बार बार चार्ट का एक बार है वो 2002 से कम है, तो मैं क्या इंटरप्रेट एनालाइज कर सकता हूँ कि 2001 का जो सेल हुआ था प्रोडक्ट का, वो कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2002। मेरे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल, ट्रांजेक्शन है, लेकिन मुझे एनालाइज करना कि कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा सेल हुआ था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो मैं उस प्रोडक्ट के लिए 5 साल का ग्राफ में व्यू कर सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर। दैट ग्राफ जस्ट इंडिकेट कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लास्ट 5 ईयर में कितने यूनिट में बेचा गया है, 2000 में कितना सेल हुआ था, 2001 में कितना हुआ था, 2003 में कितना हुआ था। तो जिस ईयर के लिए बार चार्ट में बार सबसे लेंथी होगा, मींस उस ईयर में सबसे ज्यादा सेल हुआ है उस प्रोडक्ट का। दैट आई कैन इजीली गेस, आई कैन इजीली एनालाइज समथिंग like such important information we can extract from the recorded transactions by analyzing the data through R programming. ठीक है, एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डेवलप नहीं करना है आर प्रोग्रामिंग का यूज करके, आपको क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है। वॉट एवर द डेटा इज अवेलेबल विद यू, you can analyze that data by using different parameters in the form of different parameters. ठीक है, so R is an interpreted computer programming language which is used to analyze statistical information and graphical representation. ठीक है, तो देखो आप, अगर आपने इस चैप्टर का अगर लास्ट में अगर आपको ये विजुअलाइजेशन सीखना है, आई थिंक यहाँ पे नहीं है अभी स्लाइड पे, तो आपको अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स है, लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, बॉक्स एंड विस्कस चार्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम, अलग अलग चार्ट के फॉर्म में आपको प्रोग्राम लिख के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ऐसे हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स इंक्लूडेड आपके सिलेबस में, आपको कुछ डेटा सेट दिया जाएगा, डेटा सेट्स, ठीक है,
इनबिल्ट डेटा सेट्स भी अवेलेबल है, या तो फिर आपका अगर खुद का अगर डेटा अगर एक्सेल में स्टोर है तो वो फाइल आप आर प्रोग्रामिंग थ्रू रीड करके जो भी डेटा आपके एक्सेल फाइल में स्टोर किया है आप उसको ग्राफिकली व्यू कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डिफरेंट चार्ट्स, बार चार्ट के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में आप उसको व्यू कर सकते हैं उस डेटा को, सो दैट वी कैन इजीली एटलीस्ट एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, ये दैट इन्फो स्टोर इन डिफरेंट रजिस्टर्स। ठीक है, you can analyze that data easily by using this R programming. When this programming language was named R based on the first letter of name of two authors, Robert Gentleman and Ross Ihaka. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दो ऑथर्स ने उसको डेवलप किया है, रॉबर्ट जेंटलमैन एंड रॉस इहाका। तो दोनों भी ऑथर्स का जो नेम का जो पहला अल्फाबेट है आर, अकॉर्डिंगली नेम इज गिवन टू दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, विच वाज क्रिएटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की ऑथर से रॉबर्ट जेंटलमैन एंड रॉस इहाका, उन्होंने डेवलप किया इस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय कीपिंग इन माइंड की हाउ टू एनालाइज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। The main aim of R programming language is used to analyze the statistical information. मीन्स एक स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि सी लैंग्वेज का यूज बहुत सारे टास्क के लिए हम सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं ना, सी लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो टास्क स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। नो प्रॉब्लम, सी लैंग्वेज थ्रू भी आप डेटा एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा आपको। ठीक है, सी लैंग्वेज ऐसे इतना फ्लेक्सिबल है कि आप कोई भी टास्क सी लैंग्वेज थ्रू परफॉर्म कर सकते हो बाय राइटिंग द प्रोग्राम थ्रू सी लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है कर सकते हैं, आपको स्पेस स्पेस रिसर्च करना है, स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम लिखना है, सी प्रोग्रामिंग थ्रू लिख सकते हैं आप। आपको एंटीवायरस डेवलप करना है, सी प्रोग्रामिंग थ्रू आप कर सकते हैं। आपको वेबसाइट डेवलप करना है, मींस ऐसे बहुत सारे टाइप के एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं कि आप सी लैंग्वेज थ्रू डेवलप कर सकते हैं, है ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज। लेकिन आर प्रोग्रामिंग है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उसका यूज होता है, जस्ट टू एनालाइज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। उसमें से आप कोई भी एप्लीकेशन या तो फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते आर प्रोग्रामिंग का यूज करके। बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए उसका यूज है। ठीक है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन की, हु डेवलप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हेन? So you must remember this name, Robert Gentleman and Ross Ihaka, developed in 1995. 1995 में डेवलप किया गया था इस लैंग्वेज को। ठीक है, द इनिशियल वर्जन रिलीज किया है, पहला वर्जन जो था आर प्रोग्रामिंग का कब रिलीज हुआ था? 1995 में। द इनिशियल वर्जन वाज रिलीज इन 1995 and in 2000 a stable beta version was released. There are different versions of this R programs are available, no problem. It is a software environment used to analyze statistical information, graphical representation, reporting and data modeling. ठीक है, so you can use this software environment to analyze the statistical information. ठीक है, you can also view the uh, information in graphical format in the form of different charts. You can generate some important reports from the available data. You can also create different data models for machine learning through this R programming. You know, for machine learning algorithms, we require data models. So such type of data models also you can create by using this R programming language. So these are the different uses of this R programming language. ठीक है, रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, कुछ कुछ डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, सपोज कुछ सेवरल ईयर्स का अगर आपको डेटा आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप उसको रिपोर्ट के फॉर्म में व्यू कर सकते हो by generating some important reports. You can view, you can also view that data of several years in graphical representation format in the form of charts and so on. ठीक है, ये सारे टास्क आप कमिंग थ्रू स्क्रिप्ट लिख के परफॉर्म कर सकते हो। R not only allows us to do branching and looping, but also allows us to do modular programming using functions.
ठीक है. While writing R program, you can use decision control structure, loop control structure, the concept whatever available in C language. You already aware about this. ठीक है. As it is, you can use in R programming while writing the R script. ठीक है. There are some minor changes in the syntax. ठीक है. लेकिन जैसे आपने सी प्रोग्राम लिखते समय if else switch while loop do while loop यूज किया था, उसी तरह से ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर आप आर प्रोग्रामिंग थ्रू जब स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको यूज करना है. ठीक है. तो कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता है कि इफ का पर्पस क्या है, इफ एल्स व्हाइल लूप है तो उसका पर्पस क्या है. सेम एज इट इज यू कैन आल्सो यूज इन आर प्रोग्रामिंग. thus देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन द सिंटैक्स. ठीक है. तो जहां पर भी चेंज है तो मैं आपको इंडिकेट करने वाला यहाँ पे ये ऐसा सिंटैक्स में चेंज है. बाकी कंसेप्ट तो सेम है एज इट इज. जो कंसेप्ट व्हाइल लूप का सी लैंग्वेज में है वही कंसेप्ट आप आर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो है एज इट इज. माइनर चेंजेस इन द सिंटैक्स कि आप व्हाइल लूप सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हो तो ऐसा नहीं कि उसी तरह आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो. थोड़ा चेंज हो सकता है. जहां पर भी चेंज है हम आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा. नो प्रॉब्लम. बट ऑलमोस्ट द फैशन ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम विल बी सेम. जैसे आप सी प्रोग्राम लिखते हो उसी तरह से आपको ये आर प्रोग्रामिंग लिखना है. ठीक है. सो सी लैंग्वेज की जो भी कंसेप्ट है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, यू कैन यूज व्हाइल राइटिंग द आर प्रोग्राम आल्सो. ठीक है. फंक्शंस बेसिकली यूज फॉर राइटिंग मॉड्यूलर प्रोग्राम, है ना. No problem. Modular programming also you can write by using R script by writing functions in the R program. In the present era, R is one of the most important tool which is used by researchers, data analysts, statisticians, and marketers for retrieving, cleaning, analyzing, visualizing, and presenting the data. Okay. So in today's era, this R programming language is used by these many people, researchers, जो रिसर्च करते हैं, डेटा एनालिस्ट, है ना. देखो अभी अगर आपने अमेजोन ऐसे जो बिग रिटेलर अगर देखा तो उनका उनके कंपनी में एक सेपरेट ऐसा डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि डेली बेसिस पे उनका काम एक ही होता है कि वो डेटा को एनालाइज करे. ठीक है. डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है और बहुत सारे पोस्ट होते हैं. तो ये ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, डेटा स्टैटिस्टिशियन है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, वो आर प्रोग्रामिंग का यूज करके डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. मार्केटर्स फॉर रिट्राइविंग, ना, मींस by analyzing the data they can retrieve some important information. They can just find a hidden pattern from that stored data. They can clean the data, they can analyze the data, they can visualize the data in terms of different charts. They can also present the data. Okay. So this is nothing but the introduction of the R programming. ठीक है. इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स ऑफ द आर प्रोग्रामिंग. आर प्रोग्रामिंग क्या है, उसका यूज क्या है, किसने डेवलप किया था. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड दिस. एनी डाउट व्हाट एक्चुअली आर प्रोग्रामिंग इज? एनी डाउट, यस और नो? नो सर. हाँ. तो अभी ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इस चैप्टर में सीखना है डिटेल में. और सारे हमारे जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है वो इस आर प्रोग्रामिंग थ्रू आपको सॉल्व करना है. ठीक है. तो हमको अभी आर लैंग्वेज डिटेल में सीखना है. हर एक भी चैप्टर लेक्चर में एक न्यू कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा आर प्रोग्रामिंग का, और उस कंसेप्ट का यूज करके आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है. जैसे कि बहुत अलग अलग टाइप लाइक वेक्टर्स है, मैट्रिसेस है, डेटा फ्रेम है, ऐसे टॉपिक्स आपको सीखना है आर प्रोग्रामिंग थ्रू. एक टॉपिक सीखने के बाद हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट बेस्ड है वो आपको सॉल्व करना है. ओके. नेक्स्ट स्लाइड यूज फीचर्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो पहला फीचर है आर इज अ डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच एम्स टू डू डेटा एनालिसिस. है ना. ये जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किस डोमेन के लिए डेवलप किया गया है? डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ. यही उसका डोमेन है, डेटा एनालिसिस. आर प्रोग्रामिंग का एक ही एम है कि डेटा को एनालाइज कैसे कर सके. So for data analysis only, specifically this R programming language is
developed. There are the following features of R programming. First, it is data analysis software. Okay. So this system software, say R programming, is used for data analysis purpose only. Okay, our aim to learn this R programming is to do the data analysis only. You must know how to perform data analysis by writing program through R script. Once you learn R programming, you can easily perform data analysis task on the data or the information, whatever is recorded. It has a consistent and incorporated set of tools which are used for data analysis. Okay, so R programming supports several tools. Ready-made tools are available, like in the form of library or in the form of different functions or concepts. You can use those tools for data analysis purpose. Huge number of tools are available, like vectors, list, data frame, मैट्रिसेस, ऐसे बहुत सारी टूल्स हम बोल सकते हैं कि अवेलेबल है. जिस टूल्स का यूज करके आप इजिली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं by writing program through R language. For different types of calculations on arrays, lists, and vectors, R contains a suite of operators. R programming language also supports several operators. By those operators, you can easily perform operation on arrays, lists, and vectors. Okay, and accordingly, you can analyze the data. It provides effective data handling and storage facility. It is an open source, powerful, and highly extensible software. ठीक है, ओपन सोर्स है. आर प्रोग्रामिंग क्या है? It is open source software. Open source means what? It is freely available on the net. Source code of R programming language, easily you can modify that and you can develop your own version as well. Such a concept is nothing but the open source software. है ना? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना पड़ता है. अगर वो सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करना है तो आपको सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ेगा. तो फ्री नहीं है. ओपन सोर्स मींस व्हाट? फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री. ठीक है, तो ये आर प्रोग्रामिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है वो टोटली फ्री है. ठीक है, freely you can download it from the internet. Not only you can download freely, you can also modify that software so that you can develop your new version by introducing new function and features in that. Such type of software are called as open source software. अभी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज अपने सिटी में ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है. लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स. वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हो, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो. तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परचेस करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल है. उसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, कुछ सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है. तो उसमें से ये जो आर प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है वो टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है. इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, powerful and highly extensible software. It provides highly extensible graphical techniques. Okay, there are huge or large number of functions are available. By using those functions, you can view the data in graphical format. Okay, 2D graph, 3D graph. Okay, आप डेटा 2D और 3D ग्राफ के फॉर्म में व्यू कर सकते हो. अलग अलग टाइप के चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है, हिस्टोग्राम है. तो अलग अलग चार्ट के फॉर्म में भी आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हो. इतने फंक्शंस दिए हैं आर प्रोग्रामिंग में कि आप उसका यूज करके इंफॉर्मेशन को 2D ग्राफ 3D ग्राफ में व्यू कर सकते हो. 2D पाई चार्ट है, 2D 3D पाई चार्ट है, 2D मींस any information you can view in graphical format in the form of charts. It allows us to perform multiple calculation on using vectors. R is an interpreted language. तो ये फीचर्स है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. आर प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. आर प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, लाइन बाय लाइन.
इंटरप्रेटर यूज होता है. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग. ठीक है. In next lecture, we'll discuss advantages of R programming and remaining topics. Any doubt up to these students? Yes or no? No, sir. If you have any doubt, you can ask. No, sir. No, sir. Okay. So we'll discuss more on R programming in next lecture. Do not leave the meeting, students. Let me take the attendance. Sir,